हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूमेरिक फंक्शंस पे वर्क करेंगे। सो वी विल बी वर्किंग ऑन द न्यूमेरिक फंक्शंस एंड हाउ दे आर बीइंग यूज्ड इन माईसीक्वल। तो न्यूमेरिक फंक्शंस के लिए किसी टेबल की आपको ज़रूरत नहीं होती है। यू कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट योर न्यूमेरिक फंक्शंस। सो द फर्स्ट फंक्शन दैट विल बी लर्निंग इज़ योर पावर फंक्शन। सो पावर फंक्शन को हम पावर भी बोल सकते हैं। So power function finds out the power of a number, that is for example on the right hand side you can see power, then bracket में हमने लिखा हुआ x, y. So जब हम x, y लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया कि x की पावर y वो find out करेगा. So let's try to execute some power functions. So for that you just have to simply write select, and select के बाद आपको function का नाम लिखना है, और function के नाम लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर आपको दो वैल्यू प्रोवाइड करनी है। दैट इज यू हैव टू प्रोवाइड अ वैल्यू x एंड अ y. बोथ x and y should be numbers. So for example, if I pass 5,3 or 5,2, let's take a smaller number to make you understand. So 5,2. So this will actually find the power of 5 raised to the power of 2. So that is, for example, if you write something like 5 and then after that if you put a power of 2 over it, so how do you calculate? So in that case what you do is you actually multiply 5 twice, because हम लोगों ने उसकी पावर 2 दी हुई है। 2 का मतलब हो गया it will multiply this 5 twice, so it will be 25, so it will actually return 25. नाउ जैसे मैंने आपको बताया न्यूमेरिक फंक्शंस यूज़ करने के लिए आपको किसी टेबल की ज़रूरत नहीं होती है। यू कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट योर न्यूमेरिक फंक्शंस. So this will actually return 25. So let's execute our function. So here you can see the output. Now इसमें एक चीज़ और आप नोटिस करना कि when the output is being produced, you can see the first thing, the heading will be same. जो आपने यहाँ पे select के बाद दी है, the heading will be same. If you want to put a different heading, if you want to rename the heading, then you can use the alias that we have learned in the select command videos. तो आप as करके और उसका alias लिख सकते हो. यहाँ पे उसका return result आ रहा है, नीचे आप देख रहे हो, this is the return result, that is 25. Fine. So now you know what is the usage of pow. So pow actually finds out the power of the first number to the power raised to the power of the second number that we pass in the function. तो इनको functions बोलते हैं, और functions तब तक रन नहीं करते जब तक ये ब्रैकेट्स ना लगे, जिनको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं. तो ये पैरेंथेसिस कंपलसरी होते हैं आपके फंक्शंस के अंदर. ठीक है. सो दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन. सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट द सेम फंक्शन यूजिंग पावर, बिकॉज अभी हमने पावर यूज़ किया है. सो पावर एंड पावर आर वन एंड द सेम थिंग. द ओनली डिफरेंस इज वी हैव अ डिफरेंट नेम्स टू इट. सो यहाँ पे हम पावर भी यूज़ कर सकते हैं. तो अब पावर में अगर मैंने बोला 2,3, so now you will guess the output, what will be its output. So I hope you might have guessed it. So let's try to calculate it first and then try to see the output. So calculation जब हम करेंगे तो what we will do is this actually represents 2 to the power of 3. So when we say 2 to the power of 3, that means 2 जो होगा that will be multiplied thrice. So 2 into 2 into 2, so that actually comes out to be 8. So that is 2 to the 4, 4 to the 8. So now if I press enter, it will actually return 8. So you can see here it actually returned 8. So we have seen the usage of the first function, that is pow, or you can say power. Pow और power में अगर आप सेकेंड जो नंबर है that is y जो है वो आप अगर 0 देते हो तो it will always return 0. Sorry, it will always return 1, not 0. So that is if any number, मतलब बेसिक है ये, if any number, for example if I put something like 2 to the power of 0, so any number raised to the power of 0 will always give you 1. कोई भी नंबर होगा उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर हरदम 1 होगा. So let's again see here. So if I say select pow and if I say 2, 0, so then it will return 0. और आप 2 की जगह कोई भी नंबर दे दो उसका आंसर हरदम 1 ही आएगा. तो any number raised to the power of 0 is always 1. Next is if you want to find out the square root using this power, so that can also be done. For example, if you write select pow
एंड देन पाओ के बाद अगर आपने कोई नंबर दिया, लेट्स टेक 25, अब 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है. स्क्वायर रूट कैसे आप निकालते हो? दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा अंडर रूट ऑफ 25. सो अंडर रूट ऑफ 25 में हाउ you will be finding, you have to find the pairs of the numbers. So you find the pairs of the numbers as 5 multiplied by 5. So that actually returns into 5. So the output of the square root of the 25 is always 5. So यहाँ पे आप square root निकालना है लेकिन पावर के साथ में. तो कैसे आप करोगे? मैथ्स अगर जिन बच्चों के पास होगी तो दे विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इट. दैट इज आपको क्या करना है, 25 की पावर अगर हम 1/2 कर देते हैं तो दैट इज इक्वल टू योर स्क्वायर रूट. तो 1/2 तो हम यहाँ नहीं लिख सकते, बट वॉट यू कैन डू इज यू कैन राइट समथिंग लाइक 0.5. सो इफ यू राइट 0.5 here and put a semicolon here and execute this, it will actually return 5. So you can even find out the square root of the number by putting the second digit y as 0.5. सेकेंड डिजिट अगर 0 होगा तो उसका हरदम रिजल्ट 1 होगा, 0.5 होगा तो इट विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. ठीक है. सो वी हैव लर्न द यूसेज ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज पाव और पावर. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड फंक्शन दैट इज मॉड. मॉड हमारा रिमाइंडर निकालता है एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड. ठीक है. सो हमारा मॉड निकालता है, तो मॉड का मतलब मॉड मतलब रिमाइंडर निकालता है. तो रिमाइंडर का मतलब हो गया फर्स्ट डिजिट को सेकेंड डिजिट से डिवाइड करेगा एंड देन इट विल फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ ए नंबर. सो लेट्स स्टार्ट यूजिंग इट. सो दैट इज इफ आई राइट सेलेक्ट मॉड, देन ब्रैकेट में मैंने लिखा 5,2. नाउ अगर आप 5,2 लिखते हैं तो पहले समझते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आएगा. सो 5,2 का मतलब हो गया इफ़ यू राइट समथिंग लाइक 5 एंड देन यू डिवाइड इट बाई 2. सो अगर इस 5 को आप अगर 2 से डिवाइड करते हो, देन इन दैट केस हाउ यू विल बी डिवाइडिंग. सो फर्स्ट यू हैव टू राइट द क्वोशिएंट हियर. ओके. सो 2 to the you get 4 here and then after that you get a 1 here. Now it is no longer divisible. अब जो 1 है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, डिविजिबल नहीं है. नॉर्मली जब डिवीजन करते हैं तो आप पॉइंट लगा सकते हो, लेकिन मोड जब निकाल रहे हैं सो यू विल नॉट पुट अ पॉइंट हियर and then see without putting a point here, see what you actually get as an output as a remainder. So you get 1 here. So the output will be 1 when you execute this function. So if I execute this function, you get the 1 as an output, the same output that we have actually calculated. So जो हमने calculate किया था वो same output यहाँ पे आ रहा है 1. So now you know how to calculate the remainder of a number. और इस remainder of a number में ये चीज़ ध्यान रखना, first number second number से divide होता है और जो हमारा क्वोशिएंट होगा वो पॉइंट में कभी नहीं आएगा. पॉइंट में आएगा तो हरदम रिमाइंडर हमारा 0 निकलेगा. So let's try to see more examples of mod. ठीक है, so that you are better able to understand the concept of mod. Let's start. So if I write select mod and then within bracket if I write something like 7,2, let's take 2. Okay, it will again remainder 1 होगा. Let's take 4. Fine. So if we divide 7 by 4, what will be the remainder? You will have to guess it out and here we'll be doing first the calculation. तो हमने calculation किया तो हम लोग 7 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1s 4 आएगा पहले. Then you will get 3 here. Now 3 is no longer divisible, so you get a shorter number. ठीक है. So this is your output. So it should display 3 as a remainder. So now if I press enter, you get the 3 as an output. I hope you have understood it. Fine. If you have understood it, let's try to solve the next mod. So select mod और bracket में मैंने लिखा let's take 4,7. Now what will happen? You will again have to guess it first and then you have to find it out कि 4 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा. So calculation करके ट्राई करते हैं. So what you are doing is you are dividing 4 by 7. Now when you are dividing 4 by 7, it will never be divided because point लगाना पड़ेगा तभी possible होगा. ठीक है. So a point लगा नहीं सकते हैं. So in that case what you have to do is 7 zeros are 0 and then you get the remainder back as 4 and this is your answer.
सो व्हेन यू डिवाइड अ शॉर्टर नंबर बाय अ बिगर नंबर, देन जो आपका छोटा नंबर है वही आपका रिमाइंडर बन जाएगा. सो द आउटपुट मस्ट बी 4. So now if I press enter, you get the 4 as an output that we have already calculated. I hope you have understood the usage of mod also. तो mod हमारा रिमाइंडर निकालता है, बट ये ध्यान रखना जो क्वेश्चन होगा वो कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, अदरवाइज रिमाइंडर हरदम हमारा 0 निकलेगा. फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज राउंड फंक्शन. जो हमारा राउंड फंक्शन है वो हमारे नंबर को राउंड ऑफ करता है टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ डिजिट्स. नाउ राउंड यूज करने के लिए अगेन विल बी यूजिंग सेलेक्ट राउंड, and then after that within the bracket you have to specify a number. And when you round off a number, you normally have a number with decimals. For example, if I say 98.5, okay, if you round this particular number, so it will actually result into 99. I will try to first of all explain how actually round works. So round कैसे हमारा काम करता है. When you say 98, okay, when you say 98, जब आपने 98.5 बोला, ठीक है, तो we are rounding it off, but we are rounding it off to how many digits, because यहाँ पे हम लोगों ने कॉमा नहीं दिया है. अगर आप राइट साइड में देखो तो राउंड के दो फंक्शंस हैं, एक है राउंड जिसमें एक नंबर दे रहे हो खाली, और दूसरा है राउंड जिसको कॉमा के बाद आप डेसिमल डिजिट्स भी बता रहे हो कि कॉमा पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए. बट यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट दिया है, हमने सेकंड आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है. सो दैट मीन्स सेकंड आर्ग्यूमेंट इज ऑलवेज 0. मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए आउटपुट में, देयर शुड बी नो डिजिट्स. सो वी आर राउंडिंग ऑफ टू वी कैन से 0 डिजिट्स. तो इसको हम बोलते हैं राउंडिंग इट ऑफ टू 0 डिजिट्स. व्हेन यू आर राउंडिंग ऑफ टू 0 digits, that means you have to remove all the numbers which are there after decimal. So if we see here how many digits are there after decimal, there is only 1 digit. Fine, so you will have to remove this digit. So if you have to remove this digit, तो क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो आपका नंबर रिमूव हो रहा है उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इट विल गिव अ कैरी ऑफ 1. तो ये अपने पहले वाले नंबर को 1 कैरी दे देगा. लेकिन अगर ये 4 या 4 से छोटा नंबर होता तो वो कैरी नहीं दे पाता. सो राइट नाउ इट विल गिव अ कैरी ऑफ 1 टू दिस नंबर. सो दिस विल एक्चुअली बिकम 99. So if we execute this function, so this will become 99. Okay, the same concept will apply to जब हम comma use करते हैं. तो I will give another example. ठीक है, so you can see the output here. We got this 99 as an output. Let's take another example here. If I say select round 76 point, and if I specify many number of digits here, okay, then in that case what happens is you again have not specified a comma here. That means you are rounding it off to 0 decimal places. 0 decimal places का मतलब ये हो गया कि डेसिमल के बाद एक भी डिजिट नहीं होना चाहिए आउटपुट में. तो अगर एक भी डिजिट डेसिमल के बाद नहीं होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी डेसिमल के बाद नंबर्स हैं सबको हम लोग रिमूव करेंगे. So we will be removing all these digits, that is 4, 3, 2, 5. अगर सारे डिजिट्स अगर हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखेंगे कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है. तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट 4 है. तो ये जो 4 है ये अपने प्रीवियस नंबर को कैरी नहीं दे पाएगा. सो विल इट बी एबल टू गिव अ कैरी टू 76? नो, इट विल नॉट बी एबल टू गिव अ कैरी टू इट्स प्रीसीडिंग नंबर. प्रीसीडिंग नंबर मतलब उससे पहले का जो नंबर है, तो ये उसको कैरी नहीं दे पाएगा बिकॉज ये 5 या 5 से बड़ा नंबर नहीं है. तो इट विल नॉट गिव अ कैरी. अगर ये कैरी नहीं देगा और उसको कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका आउटपुट आएगा 76 ओनली, बिकॉज कैरी उसको नहीं मिला. फाइन, सो आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ द यूसेज ऑफ दैट. डेसिमल के बाद हमने नंबर दे दिया, कॉमा नहीं लगा रहे हैं, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद सारे डिजिट्स को आपको रिमूव करना है. लेट्स ट्राई टू सी some of the cases wherein
यू विल बी ऑल्सो स्पेसिफाइंग कॉमा. तो यहाँ पे जब मैंने लिखा सेलेक्ट राउंड, आफ्टर दैट if I write for example comma 1, okay. Now यहाँ पे जब मैंने comma लगा दिया, this is the second type of the round that you can use. So once you specify a comma, this is your second argument that actually represents कि round it off to 1 decimal place. राउंड इट ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस का मतलब ये हो गया कि आपको एक डिजिट तो रखनी है, उसके बाद जितने एक्स्ट्रा डिजिट्स हैं उनको रिमूव करो. सो दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल बी कीपिंग 4 हियर. नाउ व्हाई 4? बिकॉज डेसिमल के बाद हमने कॉमा के बाद हमने 1 बोला है, तो आप 4 तो रखोगे, तो आउटपुट में आपके पास 4 रहेगा. अगर 4 रहेगा तो विच इज द एक्स्ट्रा डिजिट्स हियर? सो वी हैव 2 एक्स्ट्रा डिजिट्स हियर, that is your 5 and 6. If these are the 2 digits which are extra and we don't want these digits in the output, so uska leftmost digit kya hai? That is 5. If it is 5, it will give a carry of 1 to its preceding number. मतलब वो 4 को carry देगा, उधर carry नहीं देगा, अपने जो पहले वाले नंबर है उसको carry दे देगा. So वो 4 को carry जब देगा तो it will become 5. So now if we execute this statement, so it becomes 865.5. I hope now you might have understood why we got this 5. We got this 5 because we have to keep 4, because comma के बाद 1 का मतलब है कि आपके पास decimal के बाद 1 digit should be there, and we have to remove the excess digits. So we are removing 56, और 56 में लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो है वो 5 है, तो इट विल गिव अ कैरी ऑफ 1 टू द प्रीसीडिंग नंबर, सो दैट इज 4. तो उसने 4 को जब 1 कैरी दे दिया तो इट बिकम्स 5. ओके, इफ यू माइट हैव अंडरस्टूड, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट मोर ऑफ द राउंड फंक्शन, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस विद रिगार्ड्स टू योर न्यूमेरिक फंक्शंस. ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं. सो दैट इज सेलेक्ट राउंड. Let's take a bigger number. If I say here 2, comma 2. So comma 2 का मतलब हो गया there should be 2 digits after decimal. So there should be 2 digits after decimal. So we will keep these 2 digits. And which are the excess digits? We have this 78 as the excess digits, so we'll be removing these 2 digits. तो ये दो जो excess digits हैं 78, we'll be removing these 2 digits. If we'll be removing 78, in that case, if we'll be removing 78, in that case, we'll be removing this 78. The leftmost digit is 7, and if the leftmost digit is 7, so it will give a carry of 1 to the previous number, that is 5. So the output will become 7596.46. Okay, so let's see the output now. So this becomes 7596.46. Let's see the same with the 3. अगर हम इसमें 3 दे देते हैं तो क्या होगा अब? Now if you specify 3 here, in that case we have to keep 3 digits, so we'll keep these 3 digits. The excess digit will be removed, and the excess digit is what? The excess digit is 8, so we will be removing that 8 here. So when we'll be removing 8, so because it is more than 5, it will give a carry to the previous number, and the previous number is what? So you can already see the previous number is 7, so it will give a carry of 1 to the previous number, so that is your 7. So this will become 0.458. So let's execute this and see the output here. Now you can see 458. So comma 3 means you have to there should be 3 digits after decimal. Fine. Let's create another example. If I just specify here 4, now what will be the output? सो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स कि हमारे डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए, तो चारों डिजिट रख लेंगे. अब कोई एक्सेस डिजिट नहीं है तो आउटपुट यही रहेगा. ठीक है,
सो एक्सेस डिजिट जब होता है वो रिमूव हो जाते हैं, और उसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ा है तो कैरी दे देता है. तो ये 2-3 चीज़ें इसमें पॉइंट्स में ध्यान रखोगे तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ राउंड. So the output is same 4, 5, 7, 8. Okay, fine. Let's see what if you specify 5 here. Because हमारा कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये जो कॉमा के बाद जो डिजिट है, this actually represents how many digits should be there in the output after decimal. So there should be 5 digits. 5 digits, okay, fine. But we only have 4 digits. So from where will the 5th digit come? So it will automatically place 0. ठीक है, तो अपने आप ही वो एक 0 लगा देगा to complete 5 digits. So if we execute this function, in that case you can see here we have in the output we have 5 digits, that is it has put that extra 0 to complete 5 digits. So now you actually know what is the use of this 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay. Now here's a task to you. You will find out the output of this particular number. Let's take okay. So now what will be the output of this number? This is a task to you. Take your time, just take half a minute. I'll be waiting here. Then we will try to first of all solve and then see the output of this. Okay, fine. So let's try to solve this. So the number that we have is basically here, we have this 0.9943 and comma के बाद 1 है. So that means after we have to keep this, क्योंकि कॉमा 1 है तो एक डिजिट हम रखेंगे. The excess digits needs to be removed. What are the excess digits? You already know the excess digits. The excess digits are this 943. So we'll be removing this 943. अब 943 को अगर हम रिमूव करेंगे तो उस केस में 943 के अंदर जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, that is your the left most digit is 9. So it will give a carry of 1 to this 9. तो अगर इसको 1 मिल गया तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 1 10. सो 10 हो गया तो यहाँ पे कैरी मिल गया तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे वही एज इट इज़ 9 रहेगा, 5 रहेगा और 7 रहेगा. सो द आउटपुट शुड बी दिस 7597.0. ठीक है, लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस. सो यू कैन सी 7597.0. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स तो राउंड आपका कंप्लीट हो गया. लेकिन राउंड में अभी एक और चीज़ बाकी है, वो है अगर आपने उसको नेगेटिव नंबर दे दिया, जो आपका डी है, डी की जगह पे मतलब जो आपका हाउ मेनी डिजिट्स टू राउंड ऑफ, उसकी जगह पे अगर आपने नेगेटिव नंबर दे दिया तो इट स्टार्ट्स वर्किंग इन अ डिफरेंट वे. लेट्स ट्राई टू सी दैट ऑल्सो. सो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा जैसे सेलेक्ट राउंड और ब्रैकेट में मैंने लिखा नंबर वही है 7596.9943, लेकिन कॉमा के बाद यहाँ पे हमने दे दिया -1. सो नाउ व्हाट विल हैपन, विल से कि -1 तो पता नहीं क्या होगा, बिकॉज 0 का मतलब डेसिमल के बाद जितने डिजिट है सबको रिमूव कर दो, यू विल बी रिमूविंग ऑल द डिजिट्स. 1 मतलब 1 को रख लो बाकी रिमूव कर दो, 2 का मतलब 2 रख लो बाकी डिजिट रिमूव कर दो, 3 का मतलब 3 रख लो बाकी रिमूव कर दो, एंड सो ऑन. But what will this do? So this behaves in a different manner. So let's try to first of all explain me what this -1 does. This -1 actually represents that remove all the digits, that you will have to remove all the digits after decimal. आपको डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं वो तो रिमूव करने ही करने हैं, साथ में इसके साथ में आपको डेसिमल से पहले एक डिजिट को भी रिमूव करना है. तो आपने देखा ना, पॉइंट के बाद के डिजिट रिमूव करनी है तो आप यहाँ पे देते हो कि कितने डिजिट आपको रखने हैं, सिर्फ वो आप बताते हो. लेकिन जब -1 बोलते हो तो -1 का मतलब है डेसिमल के बाद तो आपको कोई भी डिजिट नहीं रखनी है, डेसिमल से पहले भी आपको एक डिजिट हटानी है.
तो डेसिमल से पहले एक डिजिट को हमें रिमूव करना है, -1 का मतलब ये हो गया। लेकिन रिमूव करने का मतलब ये नहीं कि सिंपल रिमूव करना है, उस रिमूव करते टाइम हम क्या करेंगे, वी विल बी रिमूविंग दैट नंबर और उसकी जगह पे हम 0 प्लेस कर देंगे। लेकिन वो नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है जो हम रिमूव कर रहे हैं लेफ्ट मोस्ट डिजिट, तो वो अपने प्रीवियस नंबर को 1 कैरी देके जाएगा। सो यहाँ पे 1 कैरी मिलेगा बिकॉज दिस वाज योर 6, सो इट विल गिव अ कैरी ऑफ 1 टू दैट 9। सो अगर हम ऐड करेंगे तो 9 + 1 10 बन जाएगा, तो यहाँ से वो 10 बन के यहाँ 0 हो जाएगा, तो 5 को 1 कैरी मिल जाएगा, तो 6 हो जाएगा। सो द आउटपुट विल बिकम 7 6 0 0, बस इतना। क्योंकि डेसिमल के बाद तो एक भी डिजिट नहीं होगा, लेकिन डेसिमल से पहले आपका एक डिजिट और रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे 0 प्लेस हो जाएगा, और जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट जो रिमूव हो रहा है अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो अपने प्रीवियस नंबर को 1 कैरी दे देगा। सो द आउटपुट विल बी 7600। लेट्स ट्राई टू सी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट नेगेटिव। आपका अगर सेकेंड आर्ग्यूमेंट एक नेगेटिव नंबर होता है तो और क्या होगा। सो I'll take the same number, that is 7596.9943. यहाँ पे instead of -1 if I put -2, तो इस -2 का मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे what it will do is it will actually remove all the decimal places, that means इतना portion इसका remove हो जाएगा। Now if this particular portion will be removed, because -2 का मतलब है डेसिमल से 2 डिजिट, डेसिमल से पहले 2 डिजिट्स को भी रिमूव कर दो, तो यहाँ पे it will actually put 2 zeros. So यहाँ पे it will put 2 zeros, instead of 96 there will be 0 and 0. अब लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है यहाँ पे जो रिमूव हो रही है, वो 9 है। So 9 will give a carry of 1 to the previous number, that is 5. So this will also become 7600. So if I execute this statement, so it will become 7600. Let's see more of its example here so that you can understand. Let's say -3, okay, and I will change the number also. Fine. Now if I say -3, what will happen is -3, as you already know that when we say -3, that means डेसिमल से पहले 3 डिजिट को वो हटा देगा और डेसिमल के बाद तो कुछ रहेगा ही नहीं। सो इट विल रिमूव दीज 3 डिजिट्स बिफोर डेसिमल, और उन तीनों डिजिट्स की प्लेस पे वो 0 उसको पुट कर देगा। सो दैट मीन्स हियर वी विल हैव 0 आफ्टर दिस, 4 की जगह पे 0, 9 की जगह पे 0 और 6 की जगह पे 0, 3 zeros आ जाएंगे। नाउ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट दैट इज 4, विल इट बी एबल टू गिव अ कैरी टू 7? नो, बिकॉज जो 4 है वो कैरी नहीं दे पाएगा। 5 या 5 से बड़ा नंबर ही कैरी दे सकता है। ओके, सो इट विल नॉट गिव अ कैरी टू द प्रीवियस नंबर, दैट इज द प्रीसीडिंग नंबर। सो द आंसर विल बी 7000. So if I now press enter, so the answer will be 7000. Let's see more of its example. I'll take the same digit, but यहाँ पे if I put -4, तो -4 का मतलब ये हो गया कि डेसिमल से पहले 4 डिजिट्स को हटा दो। जो 4 डिजिट ये हैं और डेसिमल के बाद तो डिजिट हटेंगे, तो ये सारे डिजिट्स को हटा देगा। तो अब ये 4 डिजिट्स जो हैं इनकी जगह पे वो 0 प्लेस कर देगा। सो देयर विल बी 4 zeros, 1 फॉर द 7, 1 देन अनदर फॉर द 4, तो 9 की जगह पे 0 और 6 की जगह पे भी 0 हो जाएगा। नाउ विच इज़ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट? लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 7, सो इट विल गिव अ कैरी ऑफ 1 टू इट्स प्रीवियस नंबर, लेकिन प्रीवियस नंबर कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स वो सिंपली 1 ही रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स प्रीवियस नंबर कुछ नहीं है, तो यू कैन थिंक ऑफ इट कि उससे पहले 0 है। So this will become 10,000. So now if I execute this function, so this is how you will have to, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है related to round, so this is how you will have to find out the output. Don't be in a hurry, उस चीज़ को समझो और फिर उसके बाद उसका एक रफ में वर्क करके then find out the output. So now if I press enter, so it says 1 and then 4 zeros. 4 zeros because -4 लिखा है, लेकिन जो हमारा 1 आया वो बिकॉज कि लेफ्ट मोस्ट डिजिट 7 था, तो उसने प्रीवियस नंबर को कैरी दे दिया। प्रीवियस नंबर कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 0 ही होता है, तो 0 + 1 becomes 1. Fine. And this is our last example to make you understand. What if this is a smaller number? ठीक है, अगर ये होता है, then what will be its output? Now in this case again we have a negative argument as a second argument.
तो उस केस में हम अगर समझेंगे तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इट विल रिमूव ऑल द 4 डिजिट्स बिफोर डेसिमल, और डेसिमल के बाद तो सारे डिजिट रिमूव कर ही देगा. तो in that case the leftmost digit is 3, it is not more than 5, so it will not be able to give a carry to its previous number, so this will actually become 0 only, because चारों नंबर्स की जगह पे वो 0 प्लेस कर देगा और कैरी नहीं मिलेगा, तो वो आपका आंसर 0 ही रहेगा. So let's see its output now. So that will be 0. So that's an end to this video where we have learned three numeric functions. The first was your power, the second function was your mod, and the third function is your round function. The most important of all these function is your round. ठीक है, नेगेटिव नंबर के साथ भी आपको आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर के साथ भी आना चाहिए. क्या करता है ये, और अगर सिंगल आर्ग्यूमेंट होता है दैट मीन्स देयर विल बी नो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. सो दैट मीन्स सेकेंड आर्ग्यूमेंट 0 है वहाँ पे, आप ये समझ सकते हो. थैंक यू.